Okay, first of all, good morning to all of you. By the grace of great Vaheguru and great Jantam Ramdas ji, let us start our today's topic. Our today's topic is superconductivity. Superconductivity part 2. Okay, कल हमने part 1 किया था. Today we will do the part 2 of the superconductivity. Okay, so let us take a quick review. What do you mean by superconductivity? Superconductivity क्या होती है? Superconductivity means अगर हम when we cool a sample below the critical temperature, then that sample would automatically become a superconductor by acquiring the property of resistance become zero. उस sample की resistance क्या हो जाती है? The resistance of the sample becomes zero automatically if we cool the sample below the critical temperature. And for the mercury, that critical temperature value is 4.2. It is a 4.2 Kelvin. Very small temperature. And who is the scientist? Basically who discovered it? Kamerlingh Onnes in the year 1921. Yes, 1921. Okay, so it's a great phenomena, superconductivity. So basically if we cool a temperature below the critical temperature, the resistance of that sample become zero and the sample becomes superconductor. And the phenomena is called superconductivity. So what is the main important parameter behind the superconductivity? The critical temperature. कौन है? Critical temperature is the important parameter. Okay. Now the next question is how we can destroy the superconductivity. हम सुपरकंडक्टिविटी को कैसे खत्म कर सकते हैं? How we can destroy the? Firstly, simple increase the temperature. Simply increase the temperature above than critical temperature. The superconductivity will automatically be destroyed. It will vanish. Okay. The second is by applying the external magnetic field. By applying the external magnetic field, if the value of the field would be greater than the critical value of magnetic field Hc, then the superconductivity will automatically be destroyed. It will vanish. Vanish. Okay. And we can produce the magnetic field by the two methods, by external method or second by passing through a current. Because current carrying coil is a source of magnetic field. हिंदी वालों को समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के दो तरीके हैं. चाहे तो बाहर से लगा दो मैग्नेटिक फील्ड, जहाँ किसी भी कॉइल में या वायर में से करंट को पास कर दो, तो किसी भी वायर में करंट पास करते हैं तो उसके आसपास क्या बन जाता है? मैग्नेटिक फील्ड. और अगर वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड से ज़्यादा होता है, then the superconductivity will automatically be vanish, will be disappear. Okay. Now the next part is what is Meissner effect. What's the mathematical form of Meissner effect? क्या होता है? अगर वाइवा में कोई आपसे पूछे, Meissner effect means B is equal to 0. B is equal to 0 inside the sample. B is equal to 0 inside the sample. This is the clear definition of Meissner effect. Okay. I mean to say magnetic flux density will be 0 inside the sample. कि जो magnetic lines of forces हैं, they will not penetrate in the sample. So this is a Meissner effect. This is the Meissner effect. And we have clearly shown that the superconductor will behave as a perfect diamagnetic material because B is equal to 0 is the condition of what material? किसकी condition होती है? Diamagnetic. तो diamagnetic की कितनी conditions होती हैं? Either B is equal to 0, दूसरा M is equal to minus H. अगर sample field की opposite direction में if the sample get magnetized in the opposite direction to the applied magnetic field, then the sample will automatically be diamagnetic. Third, chi magnetic susceptibility must be equal to -1. So these are the three important characteristics. I will write here. M is equal to minus H. Second, chi is equal to -1. Third, B is equal to 0. These are the important characteristics of a diamagnetic material. So it means superconductor behave as a perfect diamagnetic material. तो ये क्वेश्चन पक्का आता है कि हाउ सुपरकंडक्टर प्रूफ दैट, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, लिखिए प्रूफ दैट सुपरकंडक्टर्स बिहेव एज अ परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म. आंसर इज एज अबव, जो हमने कल किया था. ठीक है, तो वहां तक करना है आपने.
m इज इक्वल टू माइनस एच तक छोड़ दो, जहाँ काई इज इक्वल टू -1, काई इज इक्वल टू -1, ठीक है। और आगे हमने क्या किया था, याद है कुछ? यही तक किया। अच्छा, और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है मीजर इफेक्ट की, कि अगर सैंपल की थिकनेस क्या होनी चाहिए, थिक होनी चाहिए। सैंपल की थिकनेस क्या होनी चाहिए, 10⁻⁴ सेंटीमीटर से अगर ज्यादा होगा उसकी डायमेंशन, उसका साइज, then and only then मीजर इफेक्ट विल अपीयर। और दूसरा नाम क्या है, व्हाट इज द सेकंड नेम ऑफ द मीजर इफेक्ट? बहुत कम बुक्स दिखती है इसको, फ्लक्स एक्सपल्शन। फ्लक्स एक्सपल्शन क्या बोलते हैं, जोर से बोलो, क्या बोलते हैं? फ्लक्स एक्सपल्शन। मीजर इफेक्ट सारी दुनिया जानती है, मीजर इफेक्ट सारी दुनिया जानती है। अगर पेपर में एग्जाम में आ गया कि राइट ए नोट ऑन, है ना, कि गिव द डिस्क्रिप्शन अबाउट फ्लक्स एक्सपल्शन, तो कोई नहीं लिखेगा। तो फ्लक्स एक्सपल्शन मींस मीजर इफेक्ट। बोलिए एक बार, फ्लक्स एक्सपल्शन मींस मीजर इफेक्ट। और इसका ऑपोजिट क्या होगा, कॉन्ट्राडिक्शन क्या होगा? फ्लक्स पेनिट्रेशन। फ्लक्स पेनिट्रेशन। तो व्हाट इज द फ्लक्स पेनिट्रेशन? वो तब होती है, फ्लक्स पेनिट्रेशन विल हैपन ओनली व्हेन द सैंपल इज वेरी thin. The sample is very thin. I mean to say when the sample thickness is less than 10⁻⁴ centimeter, the dimension of the sample must be less than 10⁻⁴ centimeter. So this is the thing, these are the points that we have discussed in the last lecture, in the last two lectures. So I hope आपको सब समझ आया होगा। Benedict, are you getting this? Joseph? Okay, now let us start our today's topic. Now let us say, see, we have two kinds of superconductors. One is called type 1, another is called type 2. Type 1 is also called a soft superconductor, and type 2 is called a hard superconductor. So let us take the graphs are only important part. Let us try to understand the graph. So see, on the x-axis external magnetic field is there, on the y-axis m means magnetization, m means magnetization, कि सैंपल कितना मैग्नेटाइज्ड हुआ, ठीक है। इस एक्सिस पे क्या होगा, m0 होगा, इस एक्सिस पे क्या होगा, h। on this axis h is 0, on this axis m is 0. Now let us see, at this point, at this value of magnetic field, now see, from here, from 0 to this is a superconducting state, from Hc to आगे, Hc to forward, this is a normal state, this is called a normal state. Now see, let us say value of Hc is 5. Let us say value of Hc is 10 units. Let us say value of Hc is 10 units. Now see. And these kind of type 1 soft superconductor do not obey Meissner effect strictly. They obey Meissner effect strictly. I mean to say V is equal to 0. V is equal to 0 inside the sample. They follow this thing. Now let us see. As we increase the Hc from 10 units to 10.1, what will happen? Or 9.9 to 9, what would happen? क्या होगा? The value of m will abruptly falls to 0. ये क्या है? What is this? This is called a Meissner effect. This is the occurrence of the Meissner effect. Are you getting the point? As we increase the magnetic field, as we increase the value of magnetic field by beyond Hc, let us say the value of Hc is 10. If we increase from 10 to 10.1 or 9.9 to 10, what would happen? The value of m will immediately abruptly becomes 0. Abruptly एकदम चेंज होती है, एकदम ऊपर सा आदमी ऊपर गया, ऊपर से एकदम क्या किया, उसने नीचे छलांग मार दी, ऊपर से नीचे एकदम छलांग मार दी, तो क्या हो गया, वैल्यू ऑफ m बिकम्स 0। तो मैं क्या कहूँगा, अब्रप्टली हो जाता है। अब्रप्टली इज वेरी इंपॉर्टेंट। m abruptly becomes 0. m abruptly becomes 0. m abruptly becomes 0 for what condition? At the C. H greater than Hc. For H greater than Hc. It means on the value of 10.1, the value of m will abruptly becomes 0. So this is called a type 1 or soft superconductor. आपने थोड़ा सा, जैसे होता है ना, दो तरह के बच्चे होते हैं,
हमारे पास एक होते हैं बहुत सेंसिटिव बच्चे होते हैं, ठीक है, उनको थोड़ा सा भी कुछ कहो तो रोने लग जाते हैं, तो वो क्या हो गए सॉफ्ट। एक होता है ढीठ, जो इतना मर्जी कहते रहो कोई फर्क नहीं, तो वो कौन से हैं हार्ड, जैसे टाइप 2 हार्ड सुपरकंडक्टर। समझ आया कि नहीं आया? तो ये क्या थोड़ा सा इसको बच्चे को कहा तो ये रोने लग गया। तो हमने what we have done, we have slightly increased the value of magnetic field from Hc 10 to 10.1। तो जैसे ही हमने 10 से 10.1 किया तो m क्या हो गया 0, m क्या हो गया 0, m 0 मतलब मैग्नेटाइजेशन 0, मैग्नेटाइजेशन 0 मींस मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी वो भी 0। अगर सैंपल मैग्नेटाइज ही नहीं हुआ तो उसके अंदर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होगी 0, अगर वो 0 होगी तो b 0 होगी। इसी को कहते हैं ना मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, क्या बोलते हैं नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू अ सैंपल, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। m 0 मतलब b, बट व्हाट इज द कंडीशन, h must be greater than hc and value of m abruptly, the value of m abruptly, the important word is abruptly, abruptly means instantaneously, एकदम, abruptly means instantaneously, the value of the m abruptly becomes 0 as we increase h greater than hc। तो 10 से हमने एग्जांपल लिया, 10 से हमने 10.1 किया तो हम क्या हो गया 0। तो दिस इज कॉल्ड अ सुपरकंडक्टिंग स्टेट, दिस इज कॉल्ड अ नॉर्मल स्टेट। तो ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे बिहेव करते हैं, द इलेक्ट्रॉन विल बिहेव एज अ सुपरकंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, हियर द इलेक्ट्रॉन विल बिहेव एज अ नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स। what is the important difference between the normal electrons and superconducting electrons? The normal electrons will show will exhibit some resistance, but superconducting electrons will not show any kind of resistance. So we can say their resistance would automatically becomes 0। So this is our overall idea about the type 1। अब type 2 बताने की जरूरत है नहीं है, बता दीजिए सर। समझ आ गया? देखो इसमें क्या है सुपरकंडक्टर, इसमें क्या है कंडक्टर। Now let us come to the type 2 or hard superconductor। Okay, now let us see, as we increase the temperature, as we increase the magnetic field Hc1 to Hc2, it will be in the mixed state, it will be in the, let us say this is region 1, this is region 2, this is region 3। region 1 is called a superconducting state, region 2 is called a mixed or vortex state, and region 3 is called a normal state। तो इस स्टेट में क्या है सुपरकंडक्टर, इस स्टेट में क्या है रीजन 2 में पार्शियली सुपरकंडक्टर पार्शियली कंडक्टर, आधा कंडक्टर आधा सुपरकंडक्टर। तो मतलब व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस, some of the electron will behave as a normal electrons and some of the electron will behave as a superconducting electrons। और अगर Hc2 से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो क्या बन गया कंडक्टर, ऑर्डिनरी कंडक्टर। तो मान लो लेकर इसकी वैल्यू 10 है, इसकी वैल्यू क्या है 10, इसकी मान लो 20 है, इसकी 10 यूनिट्स है, इसकी 20 है। तो ये 10 से लेकर 20 तक क्या रहेगा, इट विल शो पार्शियली दी सुपरकंडक्टिंग बिहेवियर एंड पार्शियली दी कंडक्टिंग बिहेवियर। एंड एज वी इंक्रीज, इसका मतलब इसे 10 यूनिट्स मैग्नेटिक फील्ड को क्या किया रिटेन किया, रेजिस्ट किया, उसको सहन किया, उसको क्या किया सहन किया, अपनी प्रॉपर्टी को नहीं छोड़ा, ठीक है। एंड एज वी इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड बियॉन्ड 20 यूनिट्स और Hc2, व्हाट वुड हैपन, it will become a conductor। now see, क्या इसमें मेजर इफेक्ट फॉलो हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, इसमें भी B 0 है, इसमें भी B 0 है, बट नॉट स्ट्रिक्टली, मेजर इफेक्ट दोनों में हो रहा है, बट व्हाट्स द डिफरेंस, here obey measure effect strictly, here do not obey measure effect strictly। तो जो ये strictly वर्ड है दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे जो क्या है कि measure effect obey strictly, यहाँ पे do not obey measure effect strictly, क्योंकि measure effect कहाँ पे होता है ये जीरो होता है, हो जाएगी नहीं, ये स्ट्रिक्टली करता है, ये स्ट्रिक्टली करता है, ये स्ट्रिक्टली नहीं करता, ठीक है। ये Hc1 से इमीडिएटली क्या होता है कंडक्टिंग स्टेट से कंडक्टिंग स्टेट से नॉर्मल स्टेट, ये क्या आता है सुपरकंडक्टिंग स्टेट से नॉर्मल स्टेट वाया द इंटरमीडिएट स्टेट व्हिच इज कॉल्ड अ मिक्स्ड स्टेट और वोर्टेक्स स्टेट। तो ये क्या बन गया, एक सैंडविच नहीं बन गया, क्या बन गया सैंडविच, इट विल बिकम अ सैंडविच, इट विल बिकम अ सैंडविच, इसमें ये भरा हुआ है, ठीक है। तो इस स्टेट में क्या रहता है पार्शियली कंडक्टर पार्शियली सुपरकंडक्टिंग, पार्शियली सुपरकंडक्टर
some of the electrons will behave as a normal electrons, and some of the electrons will behave as a superconducting electrons. So that is why it is called a mixed or vortex state, and that is why it is called a type 2 or hard superconductor. So this is the overall idea about the type 1, which is called soft, and type 2, which is called a any doubt? Okay, तो देख सकते हो ना? ठीक है, तो आगे करते हैं लंडन इक्वेशंस. कौन क्या करते हैं? लंडन इक्वेशंस. नाउ वी विल डिस्कस द लंडन इक्वेशंस. वी विल डिराइव द लंडन इक्वेशंस. ठीक है, लंडन वाली, ब्रिटेन वाली. ठीक है, लंडन इक्वेशन ये पक्का आता है, ये आएगा बड़ा क्वेश्चन. ठीक है, 5 से 6 मार्क्स का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. आज गेटिंग दिस जोसेफ बेनेडिक्ट. हिंदी वालों को समझ आया? हिंदी वालों को समझ आया? चलो करते हैं लंडन इक्वेशंस. लंडन इक्वेशंस सर ये इम्पोर्टेंट है. बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट बड़े में आएगा. इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट. सी लंडन इक्वेशन हमें सी व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लंडन इक्वेशंस. बाय लंडन इक्वेशंस we clearly explain the Meissner effect or flux expulsion, and we can also explain the flux penetration. So London equations are very useful. It's a very useful. Okay, let us write. Let us write. We have seen that Meissner effect. We have seen that the Meissner effect in superconductors can be explained if we assume chi is equal to -1 or m is equal to -h. If we assume chi is equal to -1 or m is equal to -h. What is chi? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. इसका मतलब क्या होता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का? कि कोई भी सैंपल कितना मैग्नेटाइज हो सकता है, वो कहाँ से पता लगता है? काई. अगर काई की वैल्यू ज़्यादा है तो इसका मतलब वो ज़्यादा मैग्नेटाइज हो सकता है. इफ वैल्यू ऑफ काई इज लेस, इट मींस इट विल बी लेस मैग्नेटाइज. ओके, आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. F London and H London. F London and H London. These are two scientists. F London and H London. F London and H London. In 1935, proposed electrodynamic equations. ये लंडन दो इक्वेशन होती है. ठीक है, which clearly explain Meissner effect ब्रैकेट में लिखिए फ्लक्स एक्सपल्शन. which clearly explain Meissner effect or flux expulsion and flux penetration. Flux penetration. So we have two kind of equations: London first equation, London second equation. Let us write London first equation. Okay. It's a derivation, mathematical derivation. Let us say let m is the mass of electron. Let small m is the mass of electron. Let small m is the mass of electron. ns. रविंद्र ns क्या होगा? ns क्या होगा? Spin the quantum. Number of superconducting electrons per unit volume.
number of superconducting electrons per unit volume, ठीक है। क्योंकि जब सुपर कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो उसमें सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। आगे लिखिए NN का मतलब क्या होगा? NN का मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ओके। माइनस ई क्या होगा? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। Vs क्या होगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ सुपरकंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन, Vs, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ सुपर conducting electrons, superconducting electrons is electric field. Is called a electric field, okay. Equation of motion of electron inside a superconductor हाँ जी, बढ़ते ही क्वेश्चन ऑफ मोशन क्या आएगा? क्वेश्चन ऑफ मोशन क्या आएगा? इनसाइड अ कंडक्टर What is the equation of motion क्या आता है? Equation of motion of electron inside a conductor by the Newton second law. Second law क्या होता है? F is equal to ma, F is equal to ma, ठीक है। तो लिखिए ये क्या होगा? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको? Is given by Newton second law. क्या मैं इसका ऐसे लिख सकता हूँ? m dvs by dt, ये क्या बन गया? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? अगर उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है तो F इज इक्वल टू QE, F इज इक्वल टू QE, और Q की वैल्यू क्या है? माइनस ई। क्या है? माइनस ई। तो मैं लिख सकता हूँ माइनस ई प्लस रेजिस्टिव फोर्स कंडक्टर के केस में क्या आएगा? ये रेजिस्टिव फोर्स आएगी। कंडक्टर हैज सम सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो उसमें रेजिस्टिव फोर्स आएगी। और सुपर कंडक्टर में ये पार्ट क्या हो जाएगा? जीरो। ये पार्ट क्या हो जाएगा? जीरो, ओके। लेट अस सी दिस इक्वेशन नंबर 1। तो क्या आप सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन के लिए इक्वेशन लिख सकते हो? देखो, फॉर सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, फॉर सुपर कंडक्टर्स, प्लीज राइट, फॉर सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स देयर इज नो रेजिस्टेंस। For superconducting electrons, there is no resistance. तो ये पार्ट क्या हो जाएगा दोस्तों? ये पार्ट क्या हो जाएगा? जीरो। आनंद समझ आ रहा है? तो बेस का समझ आ रहा है? कुछ फर्क पड़ा आगे बैठ के? फर्क लग रहा है? अभी क्या है, आप न्यूक्लियस के पास बैठे हो ना, तो फर्स्ट शेल में एनर्जी क्या होती है? कम। स्टेबिलिटी क्या होती है? ज़्यादा। जितना न्यूक्लियस के पास बैठोगे स्टेबिलिटी बढ़ेगी, एनर्जी कम होगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो आप शेल को छोड़ के बाहर नहीं जा सकते, मतलब आपकी जो डिस्ट्रैक्शन होगी वो क्या होगी? कम होगी, ठीक है। सो इक्वेशन 1 बिकम्स क्या बनेगी? हाँ जी, सुपरकंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या बनेगी? m dvs by dt is equal to minus e plus 0, तो वो 0 हो गया। अच्छा, यहाँ पे सॉरी s नहीं आएगा, इसे बताया नहीं, यहाँ पे s नहीं आएगा, बिकॉज वी आर राइटिंग फॉर अ कंडक्टर में सुपरकंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स होते, ठीक है। तो dv by dt यहाँ पे dvs आएगा, ठीक है।
अच्छा, तो बता सकता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है? Current हमें डेल्टा स्टूडेंट किया था। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड प्लीज राइट ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी आर रिलेटेड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी so INA and current density and current density is related as हाँ जी current density क्या होता है J क्या होता है J तो J S is equal to क्या होता है minus NS E VS ठीक है GS is equal to minus NS E VS let us say this is question number 3 this is question number 2 this is a relation that we have taken from the lower classes 10 plus 2 minus NS E VS तो नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है electron minus डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रॉन्स की Opposite. तो नेगेटिव साइन shows that current density is opposite to current density Js current density Js is opposite to drift of electrons तो यहां से dvs by dt क्या आ गया यहां से dvs by dt कितना आ गया माइनस ई ई बाय एम दिस इज 2 दिस इज 3 दिस इज 4 ओके नाउ डिफरेंशिएट द इक्वेशन 4 with respect to time इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा कैन आई रब दिस हाँ जी दोस्तों डिफरेंशिएट इक्वेशन 4 with respect to t both sides क्या मिला अभी अनंत d by dt of Js minus is constant ns is constant E is constant तो किस पे आएगा डेरिवेटिव yes minus ns E constant dvs by dt and down no sir and down 5 now use equation 3 in equation number 5 5 use equation 3 in equation 5 we get क्या मिला हमें djs by dt is equal to minus ns e क्या है दोस्तों minus E minus e vector by M minus minus cancel कैंसिल तो क्या है हमारे पास NS E square ns e square E by e M vector by M any doubt no sir so this is called a London first equation तो नीचे ना आसान थी ना yes sir चलो बहुत आसान है equation 6 is called London first equation क्या होता है बोलो London first equation this is called a London first equation dgs by dt हाँ जी क्या इसमें रेजिस्टेंस आ रही है आ रहा है इसमें आ रहा है नो सर सो क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लंडन फर्स्ट इक्वेशन तो क्या आएगा क्या इंपॉर्टेंस है
इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ दिस इक्वेशन? इट डज नॉट शो द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो हम लिखेंगे एब्सेंस ऑफ रेजिस्टेंस। इसमें क्या है? Absence of resistance. और सुपर कंडक्टर की दिस इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, क्या सुपर कंडक्टर में रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है? नहीं होती ना। तो ठीक है ये इक्वेशन। अगर R आता है तो गड़बड़ थी, R नहीं आया तो ये इक्वेशन क्या है? Satisfy. So question 6 clearly, please write a heading: importance or utility or significance of London-First equation. The significance is it does not show it the value of resistance. That is, it shows absence of resistance. It shows absence of resistance, which is the important property or characteristics of the superconductor. It shows, equation 6 shows absence of resistance, which is the important property in superconductor. Note लिखिए, in superconductor R is equal to 0, resistance is equal to 0. Now let us drive. Now let us drive the London second equation. जो लंदन सेकंड इक्वेशन है, आपने मैथमेटिक्स में किया कर्ल क्या होता है, डाइवर्जेंस क्या होता है, किया आपने? कर्ल कांदी कर दिया था। किया ना? हाँ जी। डेल का मतलब होगा डेल, दिस डेल और दिस इज कॉल्ड डेल ऑपरेटर व्हिच इज कॉल्ड आई कैप कर्ली बाय कर्ली ए वाई जे कैप कर्ली बाय प्लस ए कैप कर्ली बाय कर्ली, दिस इज कॉल्ड अ डेल ऑपरेटर, दिस इज कॉल्ड अ डेल ऑपरेटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं ना ए क्रॉस बी, इसको क्या बोलते हैं? ए क्रॉस बी। अगर मैं किसी वेक्टर ए पे मैं इसका कर्ल लूं, डेल अप्लाई करूं, क्रॉस प्रोडक्ट लूं, इसको बोलते हैं कर्ल ए। क्या बोलते हैं? कर्ल ऑफ ए वेक्टर, कर्ल ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास जेएस है, मेरे पास क्या है? जेएस। अगर मैं आपको कहूं कि राइट दी कर्ल ऑफ जेएस, तो कर्ल ऑफ जेएस किसके इक्वल होगा? कर्ल ऑफ जीएस किसके इक्वल होगा दोस्तों? डेल क्रॉस जीएस, डेल क्रॉस जीएस। तो ये नोट में लिखिए, डेल क्रॉस जीएस। तो कर्ल ऑफ जीएस मींस डेल क्रॉस जीएस। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल टेक दी कर्ल, अब देखो कर्ल में है क्या? कर्ल में है डेरिवेटिव, कर्ल कंटेन्स दी पार्शियल डेरिवेटिव with respect to x, with respect to y, with respect to z. So take curl of equation number 6 both sides. Take curl of Question number 6. take curl of equation 6. Last both sides. मनु कर बेटा, तो मैंने लिया, ये क्या बन गया? डेल क्रॉस dgs by dt इज इक्वल टू क्या है दोस्तों? फ्रेंड्स क्या आया? डेल क्रॉस ns e स्क्वायर e वेक्टर बाय l। एनी डाउट? नो। अब देखिए, जो क्वांटिटी कर्ल में क्या है, डेल में क्या है? पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x y z। जो क्वांटिटीज x y z पे डिपेंडेंट नहीं करती उनको क्या कर लो आप? बाहर निकाल लो। तो कैन आई राइट डी बाई डी टी बाहर? कैन आई टेक आउटसाइड दी? सो आई कैन राइट डी बाई डी टी बाहर, डेल क्रॉस जीएस, डेल क्रॉस जीएस। सिमिलरली आई कैन टेक एनएस कांस्टेंट, ई स्क्वायर कांस्टेंट, एन कांस्टेंट, एनएस ई स्क्वायर बाय एन आउटसाइड, एंड दैट बिकम डेल क्रॉस ई, दैट बिकम डेल क्रॉस ई। लेट अस से दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो आपने मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ी कि नहीं पढ़ी है? एक और लिखिए नोट, मैक्सवेल इक्वेशन आपने पढ़ी है? मैक्सवेल इक्वेशन याद। मैक्सवेल इक्वेशन 4 मैक्सवेल इक्वेशंस हैं। फर्स्ट है डेल क्रॉस E इज इक्वल टू माइनस कर्ली V बाय कर्ली T।
दूसरी है डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे प्लस कर्ली डी बाई कर्ली टी। थर्ड है डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट प्रोवाइडेड एप्सिलॉन नॉट इज नॉट इक्वल टू 0। और चौथी है दोस्तों डेल डॉट एच इज इक्वल टू 0। ओके, these are the, let us say this is 8 9, this is 8. Okay, so what I will do, I will use 8 in 7. I will use 8 in 7. Okay, I will use 8 in 7. तो क्या हो जाएगा? सर तीसरा इक्वेशन क्या है? is equal to ns e square by n क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ कर्ली बी बाय कर्ली टी, माइनस कर्ली बी बाय कर्ली टी। ठीक है, सो सिंपली आई रिप्लेस दिस डेल क्रॉस ई बाय दिस माइनस कर्ली बी बाय कर्ली टी। क्या पूछे थे? सर तीसरा इक्वेशन में क्या है? डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट कॉमा एप्सिलॉन नॉट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो रिपीट हो जाएगा ना। और चौथा डेल डॉट एच इज इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है। अच्छा, क्या मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? डी बाई डी टी डेल क्रॉस जे एस इज इक्वल टू माइनस ऑफ एन एस ई स्क्वायर बाई एम। तो ये पार्शियल है, क्या मैं पार्शियल को कंप्लीट डेरिवेटिव लिख सकता हूँ? बिकॉज इट इज डिपेंडेंट ओनली वन पैरामीटर t, तो पार्शियल क्या बन जाता है? सी if any quantity dependent upon more than one variable then it become partial. If it is dependent on one variable then it becomes a complete. पता ही नहीं पता, नहीं तो ये बन जाता है dv by dt। बिकॉज क्यों? बिकॉज v is dependent only on वन वेरिएबल only on t, only on t, single पैरामीटर, सिंगल कोऑर्डिनेट टाइम। ठीक है, टाइम पे है। हाँ जी, नाउ आई वांट टू रिमूव दिस d by dt, व्हाट आई विल डू? तो मैं क्या करूंगा? अगर डेरिवेटिव को रिमूव करना है, व्हाट वी विल डू? हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट। क्या करेंगे? बिकॉज इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। So please write integrate both sides. Question number 9. Integrate question 9 both sides. You will get. क्या आया? भाई क्या आया? Del cross JS is equal to minus NS E square by N. Any doubt? Any doubt? ठीक है, लेट अस दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, एक बार का रिलेशन होता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B और A के बीच में क्या रिलेशन होता है? तो प्लीज राइट, वी नो दैट मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B, magnetic flux density B is related to vector potential A. Vector potential A vector. सौरभ, वो खत्म हो गया। विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये तो खत्म हो गया ना। इंटीग्रेशन डेरिवेटिव दूसरे के उल्टे होते हैं ना। Yes, sir. जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, करके बताऊं? अगर मैं कहूं d by dx of x को निकालो, कितना आया? 2x। 2x का दोबारा इंटीग्रेशन कीजिए, क्या आ गया? x आएगा सर। 2x square by 2, दूसरे को कैंसिल, दोबारा क्या आ गया? x square। तो ये पहले x को x वहाँ पे b आना चाहिए। क्या b आना चाहिए। इसमें क्या आना चाहिए? सर B तो आएगा ही, हाँ वही चीज़। B तो आएगा ही।
सॉरी बी नहीं लिखा मैंने, बी तो आएगा, बी तो आएगा, बी तो रहेगा, बी रहेगा, ठीक है। तो बी आया, बी इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए, बी इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए 11। अब यूज कीजिए 11 को 10 में, यूज 11 इन 10, यूज 11 इन 10, यूज 11 इन 10। गेट क्या है हमारे पास, डेल क्रॉस JS इज इक्वल टू माइनस NSE स्क्वायर B बाई, सौरभ कुमार ध्यान दीजिए सर, माइनस NSE स्क्वायर B बाई M इंटू B की वैल्यू क्या आ गई, डेल क्रॉस A, डेल क्रॉस A। अब देखो क्या करना है इसको, आप इसको क्या कीजिए, राइट हैंड साइड से थोड़ा मैनिपुलेट कीजिए, डेल क्रॉस JS। तो ये सारी क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको अंदर ले सकता हूं मैं, ले सकता हूं। तो ये आया डेल क्रॉस माइनस ऑफ NSE स्क्वायर बाई B बाई M इंटू A वेक्टर, इंटू B वेक्टर। अब पढ़ा, कोई फर्क पड़ा, माइनस NSE स्क्वायर बाई M सर B तो खत्म ही हो गया ना, B तो खत्म ही हो गया, B की जगह पर पुट की ना डेल क्रॉस A, तो B इस तरफ आ गया, डेल क्रॉस A आया। अब दिस इज कॉल्ड अ कांस्टेंट, तो इसको हमने अंदर ले लिया, ये आ गया माइनस NSE स्क्वायर बाई M इंटू A वेक्टर। फर्क पड़ा, मतलब ये एक वैसी बात है जैसे मैं बोलूं D बाई dx है, मैं कहूं 2 बाहर है तो x क्यूब, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, D बाई dx ऑफ 2x क्यूब, तो मैंने 2 को अंदर ले लिया। उसी तरह पे ये सारी क्वांटिटी को मैंने क्या किया दोस्तों, आई हैव टेकन दी इनसाइड द डेरिवेटिव। डेल का मतलब क्या है, डेरिवेटिव, डेल का मतलब क्या है, डेरिवेटिव। ये वाला इट्स अ स्टैंडर्ड इक्वेशन, इट्स अ स्टैंडर्ड इक्वेशन कि d और a के बीच में क्या रिलेशन होता है। अब देखिए इसको कंपेयर कीजिए, कंपेयर 12, कंपेयर द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 12। कंपेयर कीजिए, कंपेयर LHS एंड RHS ऑफ इक्वेशन 12। हाँ जी शाही हो, समझ आ रहा है, आपकी बात यहाँ तक आ रही है। ऑफ इक्वेशन 12 तो देखिए ये डेल है, ये डेल है, ये क्रॉस है, ये क्रॉस है, तो GS किसके इक्वल आया, GS आया किसके इक्वल आया, माइनस ऑफ NS, माइनस ऑफ NS E स्क्वायर बाय M, and this is called a London second equation. This is called a London second question number 13. Question number 13 is called London second equation. अच्छा A भी तो आएगा, माइनस NS E स्क्वायर, ठीक है। इसको बोलते हैं लंडन सेकंड इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन नंबर 13 लंडन सेकंड इक्वेशन, NS E स्क्वायर बाय E स्क्वायर इनटू A बाय M, दिस इज कॉल्ड लंडन सेकंड। तो कंपाइल करें, पहली क्वेश्चन क्या थी, कौन सी वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली। We know that magnetic flux density B is related to the vector potential A. B और A के बीच में क्या रिलेशन होता है, B is equal to del cross A। ये आइडेंटिटी होती है, हमने स्टैंडर्ड आइडेंटिटी को यूज किया, ठीक है। क्या A is called a vector potential, इसको डिफाइन करेंगे क्या होता है वेक्टर पोटेंशियल। सर एरिया वेक्टर नहीं है, अलग अलग होते हैं ये, ठीक है। B is equal to del cross A,
B इज इक्वल टू डेल क्रॉस A, और सिंपली हम क्या कह सकते हैं, हमने B को क्या अज्यूम कर लिया, डेल क्रॉस A। तो B को डेल क्रॉस A लिया तो B हट गया, डेल क्रॉस A आ गया। इसको अंदर ड्रॉप कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को क्या कर लिया, कंपेयर। वी कंपेयर द लेफ्ट हैंड साइड विद द राइट हैंड साइड, ठीक है, हो जाएगा नहीं यार। तो क्या आ गया हमारे पास, GS इज इक्वल टू माइनस ऑफ NS E स्क्वायर A वेक्टर बाय M, व्हिच इज कॉल्ड द लंडन सेकंड इक्वेशन। तो पहली इक्वेशन क्या थी दोस्तों, पहली क्या थी विशाल मौर्य, व्हाट इज लंडन फर्स्ट इक्वेशन है, dGs by dt, dGs by dt is equal to NS E square, NS E square, एक आदमी बोले NS कैपिटल E अपॉन N, मतलब इसमें रेजिस्टेंस नहीं है। और दूसरी क्या है, JS is equal to minus NS E square A vector by A। So this is called a London first equation, London first equation, and this is called a London second equation। 14 and 15 are collectively called London equation। Equation number 14 and 15 are collectively called London equation। ये पक्का आती है, ठीक है। अभी हम 10 मिनट का लेक्चर और लेंगे एक ब्रेक के बाद, तो हम अब हम डिफाइन करेंगे ये दोनों इक्वेशंस लीजर इफेक्ट को कैसे एक्सप्लेन करती है, बी कैसे जीरो होता है। 5 मिनट का आर्टिकल है, ठीक है, तब तक आप पानी पूरी पी सकते हो। तो ठीक है, एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। तो ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू।